So whenever a provision for depreciation account is maintained, you show depreciation in PFD account and not in asset, right? So that depreciation keeps on accumulating. So, under PFD method, what happens? All the depreciation and everything is charged under which method? Which account? PFD. बराबर है? And all the changes जो भी सेल का है वो सब changes are shown under a separate account called asset disposal. Asset will be always maintained at cost. Asset will be always maintained at cost. What is the entry for buying asset? It is same. Asset to buy. But what is the entry for charging depreciation? It is depreciation to asset link, depreciation to PFD. PFD में जमा होते रहेगा. PFD always shows your accumulated depreciation, जमा हुआ depreciation, and asset shows your cost. So why this method is compulsory for companies? Original cost or accumulated depreciation साथ में दिखता है. So that's right. Okay. So making it more informative for corporates, it is compulsory PFD method. Now, सबसे important sum हम लोग ले रहे हैं FIM PFD का, that is sum number 22. Sum number 22. ध्यान से देखो. Sum number 22. Our firm's plant and machinery account as at 31st December 2015 and the corresponding depreciation provision account broken down by the year of purchase are as follows. तो कंपनी के पास इतने सारे एसेट्स हैं. कितने सारे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 एसेट्स उसके पास हैं. उसकी डिटेल दी गई है. उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट सम है. अच्छे से समझ के देखना. ओके. थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हुआ ना, सब में बैंड बजेगा. सुनो, मॉड्यूल सम है ऊपर और आज तक आया भी नहीं है ये एग्जाम. आने का फुल ऑन चांस. उसमें जमा हुआ डेप्रीसिएशन प्रोविजन आपको दिया हुआ है. तो ये सब एसेट के कॉस्ट है पहले कॉलम में, एंड सेकेंड कॉलम में यू हैव ऑल द अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन. इज इट क्लियर? All the accumulated depreciation. Now, depreciation is at the rate of 10% per annum on cost. यही इंडिकेटर है कि ये आपका FIM मेथड है. बराबर? ऑन कॉस्ट. अभी 10% पर एनम ऑन कॉस्ट है, तो मुझे बताओ कि 10% पर एनम अगर कॉस्ट है तो FIM हुआ, और 10% अगर FIM है तो व्हाट इज द लाइफ ऑफ द एसेट? 10 years. The life of the asset becomes 10 years. Is this clear? Life of the asset becomes 10 years. कैसे 10 years? बोलो. 10% ऑन कॉस्ट है तो 10 साल तक 10 खत्म. राइट? So what is the life? 10 years. ये क्लिक हुआ. 5% होता तो 20. 25% होता तो 4 years. 20% होता तो 5 years. It's the company's policy to assume that all purchases, sales or disposal of plant occurs on 30th of June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date on which the events occur. Many companies follow this assumption कि साल में कभी भी एसेट आए या कभी भी बेचो, assumption है कि 30th जून को हुआ है, साल के बीच में. That is the policy. अगर उन्होंने बता दो यार पॉलिसी. सबसे पहले concepts के अंदर accounting standards. Accounting standards are formalized rules issued by ICAI with government so that companies follow them.
within the framework of standards, companies have certain freedom to follow their own rules and regulations. That is policy, company policy. And policy के अंदर आता है estimates, accounting estimates. तो कंपनी पॉलिसी रखी गई है. क्या पॉलिसी है कि साल में आप 1 अप्रैल को खरीदो या 5 फरवरी को खरीदो या 10 जनवरी को खरीदो, आप अज्यूम करोगे So it is the company's policy कि आपने कभी भी खरीदा हो, अप्रैल, मार्च, जून, मई, नवंबर, आप अज्यूम करोगे कि परचेज हो रहा है 30 जून को. कभी भी बेचा हो तो भी आप अज्यूम करोगे सेल कब हो रहा है 30 जून को. बात समझ में आई? पढ़ के समझ में आया वो क्वेश्चन? पॉलिसी दैट ऑल परचेज, सेल और डिस्पोजल ऑफ लैंड अकर्ड ऑन 30 जून in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date. मतलब precise date का कोई लेना देना नहीं. तो ये थोड़ा इजी हो जाता है कि हर एक सेल परचेज कब हो रहा है 30 जून को हो रहा है. 6 महीना डेप्री मार के बेचो या नया खरीदा तो उसमें बैलेंस 6 महीने का डेप्री मारो. During 2015 the following transactions took place. You bought a plant and machinery amounting to 15 lakhs. कब खरीदा होगा? 30. Plant that had been bought in the year 2004 for 1,70,000 was scrapped. कब हुआ होगा? 30th June. Plant that had been bought in 2005 for 90,000 was sold for 30th June. And that had been bought in 2006 2,40,000 30th. मतलब 3 सेल है, एक स्क्रैप हो चुका है, मतलब वो भी सेल ही है, और बाकी भी 2 सेल और एक परचेज है. ये सब 2015 में हो रहा है. कब हो रहा है? 2015 में हो रहा है. पीछे पढ़ो. Calculate the provision for depreciation of plant and machinery for the year ended 31st December 15. 31st December 15 का अकाउंट बनाना है, 21 साल का बनाने का. In calculating this provision, you should bear in mind that it is the company's policy to show any profit or loss on sale or disposal of land as a completely separate item in the P&L account. वो आप वैसे भी दिखाते हैं, separate item in the P&L account, profit or loss on plant दिखाते हैं. You are required to prepare the following ledger accounts during 2015. Plant and machinery at cost, depreciation provision and sale or disposal of plant and machinery. मतलब डेप्री अकाउंट को छोड़ के बाकी तीनों पूछा गया है, लेकिन एक ही साल का पूछा गया है. तो 1 साल का प्लांट, 1 साल का PFD बराबर है, एंड 1 साल का एसेट डिस्पोजल अकाउंट. 1 ईयर का प्लांट, 1 ईयर का PFD, 1 ईयर का एसेट डिस्पोजल अकाउंट. करेक्ट? 3 चीजें पूछी गई. अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं पूछा हुआ. क्वेश्चन में एक करेक्शन है. पहला लाइन, फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31st दिसंबर 2014 करना. हाँ, ठीक है, 15 का तो आपको बनाना. हाँ, फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31st दिसंबर 2014 कर देना. ठीक है, तो 2014 क्लोजिंग है, 2014 इज क्लोजिंग एंड 2015 का ओपनिंग बन जाएगा. समझ आया? अभी मुझे वो डेटा पढ़ के बताओ, उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? वो जो 6 प्लांट है उसका 6 जमा हुआ डेप्री, उसका मतलब क्या है? बैलेंस दिया है, दोनों का बैलेंस दिया, एसेट का बैलेंस दिया और PFD का बैलेंस दिया. समझ में आ रहा है? मतलब जो पहला एसेट है 1998 में खरीदा हुआ, उस पे कितना डेप्रिसिएशन जमा हो चुका है? 2 लाख वाले. फुल 2 लाख कैसे हो गया? समझना, 10 साल खत्म हो गए, तो साला क्यों पड़ा हुआ है अभी भी? देखो, एसेट 2 लाख का था, 98 में खरीदा था. हाँ, इसमें जमा हुआ डेप्री भी 2 लाख है. तो 10 ईयर्स हो चुके हैं. 2008 में तो ज्यादा चल रहा होगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट, इकोनॉमिक लाइफ एंड फिजिकल लाइफ. हम लोग जो डेप्री के लिए यूज करते हैं वो इकोनॉमिक लाइफ है, वो खत्म हो चुकी है.
बट फिजिकल लाइफ अगर ये एसी मैं बोलूँ 5 साल तक चलेगा, फिर डेप्रिशिएट कर दिया, बुक वैल्यू 0 हो चुका है, तो क्या फेंक दूं? चल रहा होगा तो भी फेंक दूं? काम दे रहा है तब तक चल रहा है, भले ही बुक वैल्यू 0 है लेकिन काम दे रहा है ना, इसके लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखा हुआ है। सर बट પછી તમે જ્યારે ફાઇનલ मानो तो नहीं बोलो સર એટલે આ જે એસી જે તમારું બુક વેલ્યુ 0 થઈ ગયું તો નેક્સ્ટ યર તમારા પ્રોફિટ્સ વધી જશે ને, કેમ કે તમને હવે ડેપ્રી નહીં લગાવવું પડે. વધશે નહીં એટલે હા ડેપ્રી વગર જ કામ આવે છે. નેગ્લિજિબલ વધશે બટ થોડું વધશે. હવે આ જે છે 2 લાખ નું મશીન હતી, आपका ये अभी एसी है, 5 साल तक चल रहा है, 5 साल तक डेप्री दिखाया, 6वें साल से डेप्री नहीं दिखेगा, बुक वैल्यू 0 हो चुका है. 7th ईयर 8th ईयर 9th ईयर डेप्री नहीं दिखेगा, बुक वैल्यू 0 हो चुका है, लेकिन एसी पड़ा रहेगा, काम दे रहा है आपका. समझ में आया? तो कंपैरेटिवली आपके प्रॉफिट्स थोड़े ज्यादा दिखेंगे क्योंकि वो खर्चा नहीं दिख रहा है. समझ में आया? ऐसा इस एसेट का सीन है. ये 98 वाला एसेट है बुड्ढा, लेकिन पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है, बुक वैल्यू 0 हो चुकी है, अभी भी काम दे रहा. 2008 में ये 0 हो चुका है. आपको समझ में आ रहा है? उसके 7 साल बाद भी काम दे रहा है, तो बुक वैल्यू 0 है फिर भी पड़ा रहेगा. सेम थिंग गोस फॉर 2004 का एसेट, उसमें भी दिख रहा है आपको 3 लाख 0 हो चुका है, काम दे रहा है, इसके लिए रखा हुआ. 2005 वाला 10 लाख का था, 9,50,000 से डेप्रिशिएट और 50,000 से डेप्रिशिएट करना बाकी है. आप वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि आपने 2005 में खरीदा था. कब खरीदा होगा 2005 में? 2005 में 6 महीना डेप्रिशिएट किया. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अब 31 दिसंबर 14 पे 9 साल और 6 महीने ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है. दैट्स व्हाई इट इज 9,50,000 पीएफडी और 6 महीने से उसको डेप्रिशिएट करना बाकी. दैट इज द मीनिंग. 2006 वाला 7 लाख का 595 से डेप्रिशिएटेड है, 5 लाख वाला 75,000 एंड 3 लाख वाला 15,000. 2014 वाला. ओके, अभी ये सारा टोटल जो है पहला कॉलम वाला, दैट शोज योर टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट. जितना टोटल कॉस्ट है मतलब वो एसेट अकाउंट का बैलेंस है. बताया था मैंने, याद है? एसेट क्या दिखाएगा अभी? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल एसेट्स. एंड जो राइट साइड वाला है वो पीएफडी का बैलेंस है, टोटल जमा हुआ डेप्रिसिएशन ऑन ऑल दोज एसेट्स. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स, यू वांट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स, हाउ विल यू डू दैट? Total cost minus total provision for depreciation, you arrive at the book value. Is it clear? वो अपने काम का नहीं, हम लोग कॉस्ट मेथड करते हैं. तो शुरुआत करते हैं पहले. ये एसेट अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट, ये आपका पीएफडी अकाउंट और ये आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट. ठीक है. अभी इसमें मशीनरी में आएगा सबसे पहले टू बैलेंस बीडी. टू बैलेंस बीडी कितना? 30 lakhs. What is 30 lakhs? Total of all the costs. Are you understanding, guys? Total of all the costs. Did you get that? Hello. Then, what will you write in PFD? By balance BD how much?
21,45,000. This is on 1115. तो 1115 को आपको एसेट का भी वैल्यू आ गया और पीएफडी का भी वैल्यू आ गया. समझ आया? Is this clear? Now we proceed with the current year's transactions. Will you have any balance in asset disposal account? Why? तो टैली हो जाता है. जो बिक चुका वो टैली होके खत्म हो गया लास्ट. चलिए करंट ईयर पे जाते हैं. करंट ईयर के 4 ट्रांजैक्शन ही हुए हैं, वही आपको रिकॉर्ड करना है. ठीक है. तो पहला ट्रांजैक्शन आई थिंक इट इज हैपनिंग फर्स्ट परचेज ऑफ अ प्लांट अमाउंटिंग टू 15 lakhs. What is the entry for buying a plant? Plant to bank, machine to bank. तो इस साल आपने 15 लाख का एक खरीदा तो प्लांट में आएगा टू बैंक 15 लाख. डेट क्या होगी? 30th June 15. Am I right? 30th June 15. खरीदा, खत्म हो गया, अभी बेच रहे हैं. Plant that had been bought in the year 2004 for 1,70,000 is scrapped. Plant that had been bought in 2004 for 1,70,000 is scrapped. Scrap मतलब पूरा depreciate. No sale value. Sorry. No sale value, fully depreciated. Zero book value and zero sale value. वैसा. राइट किया था हमने बीच में भी स्क्रैप. स्क्रैप मतलब पूरा डेप्रिशिएटेड. और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. 2004 में लिया था तो कैन आई से वर्किंग नोट 1 ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 30th June 2004 होगा ना. कितने का था? 1,70,000. लेकिन ऊपर देखो 2004 वाला तो 3 लाख दिया है. उसमें से एक पार्ट होगा. उस साल में आपने 3 लाख के खरीदे, उसमें से 1,70,000 एक हिस्सा पड़ा हुआ है. समझ में आया? तो 3 लाख वाली एक मशीन होनी जरूरी नहीं है, उसमें कितनी भी हो सकती है. तो कॉस्ट दिखता है, यूनिट्स नहीं दिखते वहां. ओके. तो 1,70,000 वाला इस 3 लाख का हिस्सा कब खरीदा था? 2004 के जून में. तो कहना से पहला 6 महीना 2004 गया, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में उसको 9 years और हो गए. और 14 के फर्स्ट 6 months 2014 के फर्स्ट 6 months में ही वो क्या हो चुका है? स्क्रैप, जीरो हो चुका है. तो लेस डेप्रीसिएशन फ्रॉम 2004 to 2014. कैन आई से इट हैज बीन 1,70,000. पूरा ही हो चुका है. तो इसका WDV एज ऑन 30th June 14 कितना हो चुका है? 0 हो चुका है. 15 तो अभी का साल है, ये तो पिछले साल ही लुढ़क गया. समझ में आ रहा है आपको? प्रीवियस ईयर पे ही इट हैज बिकम 0 बिकॉज इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2004 में. हेलो. तो 2004 का 6 months. लाइफ 10 साल है, ये समझ में आ रहा है? GFIN 10% है. तो 2004 के पहले 6 महीने गए. अपने को 10 साल किधर खत्म हो रहे हैं देखना है. फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9 years more and 14 अभी नहीं चालू है. 14 लास्ट है. उसका 6 महीने में खत्म हो चुका है. दोस्त तो 30th June को वो 0 हो चुका था. आगे तो 0, 0, 0 ही WDV उसका. बेचा कितने में? 0. सो नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो सेल वैल्यू. एंट्री आएगी भैया. सेल के वक्त होते हैं 5 steps. Step number 1, charge debris for the current year. Is there any debris for the current year? No. Book value 0. Step number 2, जो जा चुका है उसको हटाओ. रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट. बड़ा एसेट में से छोटा एसेट, ये छोटू एसेट, एंड रिमूव इट्स अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर इट टू पीएफडी. बस यही आएगा, यही 2 स्टेप्स आएगा. क्योंकि सेल है नहीं, प्रॉफिट लॉस है नहीं, तो लास्ट 2 भी इग्नोर. तो खाली 2 ही स्टेप्स करने हैं. मशीन में से हटाओ बाय एसेट डिस्पोजल या एसेट सेल अकाउंट. 1,70,000. दिस इज द कॉस्ट ऑन 30th June 15. एंड पीएफडी में से एक सेकेंड इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हटा. कितना होगा इसमें जमा हुआ डेप्रीसिएशन? 1,70,000.
कॉस्ट में से कॉस्ट हटाया, पीएफडी में से पीएफडी हटाया, यहां पे आएगा टू मशीनरी 1,70,000 और यहां पे आएगा बाय पीएफडी जमा हुआ डेप्री 1,70,000। ये स्क्रैप्ड है, मतलब फुल्ली डेप्रिशिएटेड, नो सेल वैल्यू, नो प्रॉफिट, नो लॉस। आगे के दो स्टेप्स आएंगे कैश बैंक और बीएनएल के। कंबाइन कैसे हो रहा है? एक मशीन अलग अलग साल का है, सब पे अलग अलग डेप्री है, अलग प्रॉफिट लॉस है। 3 वर्किंग नोट सेपरेट या फिर वर्टिकल वर्किंग नोट जैसे वो भी चलेगा, बट 3 नोट एंट्रीज तो एक साथ एंट्रीज आप हाँ एक साथ एंट्रीज यू कैन डू, तीनों वर्किंग नोट करके एंट्रीज एक साथ कर सकते बराबर, वो कर सकते। चलो पहला सेल समझ में आया? हाँ पहला सेल समझ में आया। क्या हुआ था फर्स्ट सेल में? नो प्रॉफिट नो लॉस, स्क्रैप्ड, फुल्ली डेप्रिशिएटेड। हाँ अगर आपको बोला जाता कि ना दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर 10,000 तो एंटायर 10,000 would have been profit because the book value is 0 है ना। 5 साल हो गए इस एसी को, फिर मैं कितने में भी बेचूं, जो भी मसाला आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट है क्योंकि बुक वैल्यू तो 0 हो चुका है, कॉस्ट प्राइस इज 0 फॉर मी। नाउ हो गया पहला सेल। पॉइंट 3, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005 फॉर 90,000 वाज सोल्ड फॉर 5। नाउ ऊपर चेक करो, 2005 वाला तो वैसे 10 लाख का है, तो क्या 10 लाख का सारा नहीं है, उसमें से 90। तो सेकेंड सेल का नोट बना लो, वर्किंग नोट 2। ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन ये कब लिया होगा? 30 जून 05 को लिया होगा 90,000। अभी पूरा 10 साल का मत करते बैठना, एकदम शॉर्टकट है इसका। हाँ इट इज लाइक 30 जून 05 को लिया है आपने, तो 30 जून 05 मतलब 05 में 6 मंथ, राइट। फिर 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक 9.5 ईयर से डेप्रिशिएट हो चुका है। आप क्या करते हो? इसको डेप्रिशिएट करते थे जीरो से। मैं एक साथ पूरा 9.5 साल का ले सकता हूँ। 9.5 years, you understood how? 2005 का आधा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रीवियस ईयर तक आ जाओ अपन 15 में। तो 9.5 years का तो उड़ाओ, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 9.5 years 85,500। कैसे करना है? कैलसी पे डालो, 90,000 इंटू 10/100 इंटू 9.5 अपॉन 12 नहीं करना है, ठीक है, ईयर्स 90,000 इंटू 10/100 इंटू 9.5 straight you will get, correct? So you arrive at WDV as on 1/1/15. Can I see this?